children, before I start your work, alright, today's session, maths, okay, I would like to give you a message once again. Of course, it is for the COVID, alright, children, yes. So welcome everyone. Nice, I can see you, your comments on the desktop today. So I'm feeling good today to watch that. Okay, fine. So children, you must be watching National Geographic channel or any Animal Planet channel where you must have watched one video where tiger or lion attacks the herd of deer. बहुत सारे deers 50, 60 बहुत सारे numbers में deer होते हैं और suddenly the cheetah or tiger or lion attacks. And what do this deer do? They run away for their lives in different directions, and this makes the work of tiger or lion easy. किसी को भी आराम से पकड़ लेता है, prey बना देता है, शिकार बना देता है. क्यों? क्योंकि किसी ने भी प्रोटेस्ट नहीं किया, उस टाइगर या लायन का सामना करने की कोशिश नहीं की. लेकिन ऐसा ही इंसिडेंट if it happens with wild buffaloes, what would happen, children? You tell me. The wild buffaloes, when they are in herd, yes, no doubt, tiger or lion is not frightened of them. Tiger or lion can easily attack them as well. But then they protest. Okay, वो लोग उसका सामना करते हैं. Alright, they don't fall easy prey of tiger or lion. वो tiger or lion के आसान शिकार नहीं बनते, उसका सामना करते हैं. यही मेरा मैसेज है चिल्ड्रन. यदि कोई घर में कोविड पॉजिटिव है, आसपास है, रिलेटिव्स में है, सपोर्ट देम, प्रोटेस्ट करो जैसे वाइल्ड बफेलो. हमें वाइल्ड बफेलो से लेसन लेना है, उसके जैसा जीना है. ऑलराइट, यू मस्ट हैव सीन द वीडियो. यस, ऑल द बफेलोज. यदि टाइगर लायन ने किसी को पकड़ लिया, आई हैव सीन वन वेयर टाइगर, I mean the lion had already caught the buffalo very well. बराबर शिकार बना लिया था. लेकिन one of the buffalo showing all the courage comes there और उसको हवा में ऐसा उछाला कि उसको उसकी नानी याद आ गई होगी. And that lion कभी भी शायद wild buffalo का शिकार नहीं किया होगा. तो what I mean to say, we will not have to live the lives like deer. जब हमको कुछ खतरा दिखे तो कोई भी डायरेक्शन में भागो नहीं. We will have to live the life like the wild buffalo. हमें सामना करना होगा उस खतरे का. So take care of all the COVID positive people at home, in your surrounding. आप अपना contribution कीजिए, whatever you can do. At the same time, you do take great care of yourselves. Okay, children? Do you promise me? आप कैसा जीना चाहोगे? डियर जैसा या वाइल्ड बफेलो जैसा? I'm sure the answers are like wild buffalo. Okay, fine. That's all. Now today, before I start the session, आगे बढ़े, where we are going to see factorization of polynomials now. Okay, but before that, वो query session, कुछ सम्स 25 क्वेश्चंस मैंने दिए थे, उसमें से कुछ क्वेश्चंस क्वेरीज में है. ऑलराइट, सो आई विल सॉल्व दैट फर्स्ट फॉर यू एंड देन वी विल प्रोसीड विद आवर लेसन एंड विल सी फैक्टराइजेशन. ओके, तो वन ऑफ द चाइल्ड, इन फैक्ट फ्यू चिल्ड्रन हैव सेंट मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप. कौन सा क्वेश्चन उसको करना है वो मुझे बताया है. सो आई विल सॉल्व दैट फर्स्ट. Well, what is the question? Yes, expand. The question is expand. Correct? और जो होमवर्क में मैंने दिया था उसमें नंबर 8, इसी की फरमाइश है कि सर नंबर 8 करो, हमें कुछ दिक्कत है. Let's see. That is x by 2 plus 7 and 4x minus 1 upon 7. Children, क्या करना है? Expand. How do you expand? Using identities. Identities. कितनी identities है? 7.
कौन सी आइडेंटिटी एग्जिस्ट हियर, विच आइडेंटिटी एग्जिस्ट हियर, देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। पहला वाला बाइनोमियल है, दूसरा वाला भी बाइनोमियल है, सो दिस इज बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल। देन वी हैव फोर टाइप्स, टाइप ए where all four terms are different, yes वही है, सब चारों terms, all five terms, sorry four terms are different, so आपको first term के साथ सेकंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूट करना है, फिर सेकंड टर्म के साथ सेकंड बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूट करना है। याद करो वो आइडेंटिटी ये थी, a plus b into c plus b, चारों टर्म्स अलग है, so what is the expansion? First term a into c plus b plus second term b into second binomial c plus b, correct? अब देखो चिल्ड्रन, ये जो आइडेंटिटी है, ओरिजिनल आइडेंटिटी है, उसमें कहीं भी माइनस साइन नहीं है, तो ये बाइनोमियल इन बाइनोमियल हमारा क्वेश्चन का मैच नहीं हो रहा है साइन के साथ, प्लस प्लस, ओके, ये प्लस ये माइनस। जब आपका क्वेश्चन ओरिजिनल आइडेंटिटी से मैच नहीं हो रहा है तो आपको ये टर्म 1/7 नहीं लेना है, साइन के साथ पिकअप करना है, और उसकी मूंछ के साथ पिकअप करना है, और क्लीन शेव वाला नहीं है, ओके फाइन। सो लेट्स सी व्हाट इज द फर्स्ट टर्म चिल्ड्रन, इट इज x by 2 into सेकेंड बाइनोमियल क्या है, 4x minus 1/7, यस सेकेंड टर्म क्या है, +7 into the second binomial is 4x minus 1/7। चलिए, जो बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल था उसका मेन एक्सपांशन आइडेंटिटी वी हैव ऑलरेडी अप्लाइड, so now we got two terms, देखो ये प्लस की साइन बीच में आ गई, so it separates first term and second term। now look at the first term, it is monomial into binomial, so again we are going to distribute this, right, x by 2 into 4x, और प्लस प्लस दोनों की सेम साइन, so this will be plus, but in the beginning I don't put any sign, माइनस और दो रखेंगे। चलिए वापस x by 2 into 1/7, different signs, so minus, चलिए now 7 into 4x, this is again monomial into binomial, correct, plus plus same sign, so the product will be plus 7x into only 7 into 1/7, and different signs, this is plus minus, so it will be minus, okay, जहां सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल हो कर लीजिए, यस ऊपर 4 है, नीचे 2 है, 2 1s are 2, 2 2s are, सो पहले टर्म में 2 डिनोमिनेटर का चला गया, यहां तो दीवार है, उस तरफ मत जाना, कुछ बच्चे इसको भी कैंसिल कर देते हैं, भाई यहां दीवार है, आपने पॉलिनोमियल सीखा ना, ये प्लस और माइनस दीवार है, तो उस रूम में कैसे जाएंगे, दीवार से नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते हैं, तो यहां ही कैंसिल होगा उस रूम में। चलिए, सो ये 2 तो बचा रहा, सो यू हैव नोन नंबर 2, अननोन्स आर x into x, so that is x square। चलिए, ये रूम में कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 2 और 7 डिनोमिनेटर में है, माइनस साइन बना रहेगा, ऊपर x, नीचे 14, 2 7 14, okay, these are simple terms, plus 7 4s are 28 into x, and last room, the last term, 7 1s are 7 1s are, so minus sign, and you are left with 1। all right children, इसका further simplification होगा, these are like terms, be careful। अब तकलीफ तो है, अपॉन 1 लिखूंगा, ये 2 टर्म, ओके, 2x स्क्वायर, वो 2 टर्म को मैं रूम में ले लेता हूं, मतलब कि ये माइनस तो है, ये माइनस तो है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल, और इसको एज आई सेड एक रूम में ले लेंगे, दैट मींस इन द ब्रैकेट
ब्रैकेट के आगे मैंने रेड कलर यूज किया माइनस, जब माइनस साइन हो तो अंदर साइन चेंज होगा। ये टर्म माइनस के साथ x/4 था, वो अब प्लस के साथ x/4 14 हो गया, 14 है। ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, दिस इज बिकॉज ऑफ माइनस साइन, और वो 28x/1, और ये रूम के बाहर है -1। चलिए, दिस इज 2x² माइनस, find go for LCM. What is LCM of 14 and 1? It's 14. 14 1s or 1 14s, 1 into x minus 14 into 28 करना पड़ेगा, या 28 into 14, 0 8 2 32 3 4 2s are 8 11, so that is 392. So 392x, और ये -1, and finally 2x² minus, children, x minus 392, ये डिफरेंट साइंस है, ये प्लस है, ये तो बाहर है, ऑलराइट, ये प्लस है, ये माइनस है, डिफरेंट साइन को सब्ट्रैक्ट करो, 392 में से एक गया तो 391x, और बड़ा टर्म माइनस, so this will be minus. So what is x minus 392x? Minus 391x upon 40, or -1. I'll continue here. That is equal to first term 2x². Yes, minus of minus plus 391x by 14 और -1. अब देख लीजिए, ये सेकंड रूम, ये सेकंड टर्म में नीचे 14 है और 391 है। 14 is divisible by 2, but 391 is not, so 2 से reduce नहीं होगा। 14 is also divisible by 7. Is 391 divisible by 7? चलिए orally करिए। 7 5s are 35, so 4 बचेगा 41, and 41 is not in the table of 7, so ऐसा ही रहेगा। So this is your final expansion. Wasn't that tough? Yes, children. लेकिन आपको करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। चलिए, we move on to the next one. Next number is 9. That is what the student has asked me to do. So I will do the 9th one. Number 9, children, it is 4a minus 1 upon 3 into 4a plus 1 upon 3. Okay, the child who has asked me this as a difficult one is not at all difficult. चलिए, क्वेश्चन क्या है? Ask yourself, expand. Expansion कैसे करते हैं? By using expansion identity. तो आइडेंटिफाई करो, कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे? बाइनोमियल है और बाइनोमियल है। 4 टाइप्स है। फर्स्ट टर्म 4a सेम, सेकंड टर्म -1/3 plus 1/3, those are opposite. So first term same, second term opposite. This is type B. कौन सी है? x minus y into x plus y. Tell me, हमारा ओरिजिनल एक्सपांशन क्या होगा? That is x² minus y². In other words, first term square minus second term square. बस अप्लाई कर दीजिए। हाँ, साइन देख लीजिए, माइनस के साथ माइनस, प्लस पहला माइनस वाला तो मैंने पहला माइनस वाला लिखा, फिर प्लस वाला। सपोज के यहाँ
साइन। क्यों? क्योंकि यहां आई गया एक्सपांशन में फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस ये साइन आई गई सेकंड टर्म स्क्वायर। अब बोलिए फर्स्ट टर्म क्या है 4a, सेकंड टर्म क्या है 1/3, साइन को देखना ही नहीं है। अब इनजस्टिस की बात आती है, स्क्वायर ऑफ 4 4 4 16, स्क्वायर ऑफ a स्क्वायर माइनस स्क्वायर ऑफ 1 1, square of 3 9, and that's it. Further simplification is not required. That is the simplest form. So that was the expansion. सब identities याद आ रही है ना? Yes, all those 7 identities you will have to keep in your mind. All right? आपको अपने दिमाग में फिट करके रखना होगा। चलिए, next demand is to do 13 to 1. 13 to 1. I believe that is also easy. लेकिन fractions है इसलिए you are finding it tough. Let's see how to do it. 13 to 1. 3x upon 2 minus 2y upon 3 whole square. Okay? चलिए expand करना है, expansion identity यूज करना है। कौन सी एक आइडेंटिटी है? बाइनोमियल है, एक ही बाइनोमियल, लेकिन उसका स्क्वायर। तो वी हैव स्क्वायर ऑफ बाइनोमियल। बाइनोमियल दो प्रकार के होते हैं, a प्लस b, a माइनस b, p प्लस q, p माइनस q। यहां माइनस वाला है p माइनस q। बोलिए ओरिजिनल एक्सपांशन क्या है? p स्क्वायर माइनस 2pq प्लस q स्क्वायर। ये तो आपको याद रखना ही है। Without remembering this, you cannot expand. Okay? चलिए, अब हम आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई करने के बाद ये लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म स्क्वायर, पहला टर्म का स्क्वायर, फिर माइनस 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म स्क्वायर। ठीक है? चलिए, अब आइडेंटिटी बराबर मैच हो रही है क्वेश्चन के साथ। ये लगते हैं देखो e माइनस q और ये भी माइनस बराबर माइनस के साथ माइनस मैच कर रहा है। तो आप पहली टर्म क्या लोगे 3x/2, दूसरी टर्म क्या लोगे 2y/2। माइनस साइन के साथ नहीं लेना। चलिए 3x/2, 3x/2 the first term, 2y/3 and 2y/, चलिए square of 3 9, square of x square upon square of 2 4 minus। चिल्ड्रन ये सेकंड रूम है, सेकंड टर्म है, 2 और 2 कैंसिल हो रहा है। अरे वाह, 3 और 3 भी कैंसिल हो रहा है, क्योंकि यहां दीवार है यहां दीवार है। दो दीवार के बीच के रूम में हम काम कर सकते हैं, कैंसिलेशन कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, डिवीजन कर सकते हैं। चलिए, यू आर लेफ्ट विद अननोन नंबर 2 x into y, that is xy, plus square of 2 4, square of y square upon square of 3 9. That's it. This is the expansion. Clear? Quickly, we have 3 more. Okay, check. I have put these 2 green dots here because there I think you are getting the spot. If I write here, you won't be able to see. So this part I won't be writing, so that whatever I write, you can see clearly. Okay? Now it's number 15. x/2 minus 7 into x/2 plus 8. Well, बाइनोमियल इनटू बाइनोमियल हम सीधा लिखेंगे। फर्स्ट टर्म सेम, x/2 सेम है, सेकंड टर्म ऑपोजिट नहीं लेकिन डिफरेंट, सो दिस इज टाइप B, a plus b into a plus c। बोलिए एक्सपांशन क्या है? a square plus sum of the second term b plus c into first term a plus प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड टर्म b into c। ऑलराइट, यहां ब्रैकेट आप नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। चलिए, साइन मैच हो रही है क्वेश्चन के साथ।
ओरिजिनल एक्सपांशन साइन मैच हो रही है? नहीं, या माइनस है या तो दोनों प्लस है, यहाँ प्लस ठीक है, ये मैच हो रहा है, ये मैच नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये 7 जो सेकंड टर्म है -7 उसको माइनस साइन के साथ चुनना है। यू हैव टू राइट -7, नॉट ओनली 7 बट -7। चलिए लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू a स्क्वायर फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फिर देखो यहाँ कहीं भी माइनस नहीं है, प्लस द सम ऑफ द सेकंड टर्म into first term plus the product of the second term। चलो अब फर्स्ट टर्म बोलिए, that is x by 2, sum of the second terms, ये second terms है, -7 साइन के साथ लेना है और प्लस है, and into first term that is x by 2। now product of the second term है -7 और यहाँ है 8, that's it। square of x square, square of 2 4। ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, एडिशन है, तो सीधा साइन माइनस और प्लस डिफरेंट साइंस है, सो यू हैव टू सबट्रैक्ट। बड़ा नंबर 8 छोटा नंबर 7, बड़ा नंबर 8 में से छोटा नंबर 7 माइनस करो, यू गॉट 1, सो राइट 1, और बड़ा नंबर 8 उसकी साइन प्लस, सो +1 इज द आंसर। प्लस साइन ना लिखो तो भी चलेगा, into x by 2। so simplification of this is 1। चलिए अब ये एडिशन नहीं है, सिंपल सीधा देख सकते हैं, ये मल्टीप्लिकेशन है। तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है, whenever there is multiplication operation, first you multiply, तो मल्टीप्लाई करेगा, 7 8 56। अब उसकी साइन डिसाइड करिए, ये प्लस तो है ही, ये प्रोडक्ट क्या आएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, different signs, so product will be minus। and now the final step, x square by 4 plus 1 into x by 2 will be x by 2, or plus minus will be minus 6। that is the expansion of this, clear? okay. moving on to 17th one। 17th one, and that is p plus 3q by 2 into p minus q by 2। once again binomial into binomial टाइप भी यही है, फर्स्ट टर्म सेम और सेकंड टर्म प्लस और माइनस की वजह से ऑपोजिट नहीं। ये 3q by 2, तो यहां भी 3q by 2 विद माइनस साइन हो, then only we can excuse me, then only we can call them opposite terms। तो opposite नहीं है, different terms है, तो ये रही आइडेंटिटी। once again पहला बाइनोमियल बराबर मैच कर रहा है साइन के साथ, दूसरा बाइनोमियल मैच नहीं कर रहा है, तो आपको ये टर्म q by 2 नहीं माइनस q by 2 लेना होगा। चलिए व्हाट इज द एक्सपांशन, फर्स्ट टर्म स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया फर्स्ट टर्म स्क्वायर, फर्स्ट टर्म है p तो वो p भी लिख दिया, प्लस ही है सम ऑफ द सेकंड टर्म है 3q by 2 और दिस विद साइन माइनस q by 2 इनटू फर्स्ट टर्म दैट इज p प्लस द प्रोडक्ट ऑफ द सेकंड टर्म 3q by 2 इनटू माइनस q by 2। आर यू गेटिंग मी? यहां स्पॉट आ रहा है शायद, ओके। चलिए स्क्वायर ऑफ p स्क्वायर प्लस, वी आर वेरी लकी यहां फ्रैक्शन है बट द डिनोमिनेटर्स आर लाइक, सेम डिनोमिनेटर्स, तो क्या करते हैं सीधा जो सेम डिनोमिनेटर है 2 लिख देते हैं एक ही बार, और ऊपर सीधा लिखना है 2q minus q, दैट्स इट। और ये ब्रैकेट उसका सिंप्लिफिकेशन, और इनटू p प्लस, चिल्ड्रन ये मल्टीप्लिकेशन है तो आप मल्टीप्लाई करिए, ऊपर नीचे कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, 3 तो 3 q into q square upon 2 2 जा 4, डिफरेंट साइन, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, सो इट विल बी माइनस, और ये रहा सिंप्लिफिकेशन ऑफ दिस लास्ट टर्म। ऑलराइट, नाउ दिस इज p square
square plus different sign 3 cube minus 1 cube. What is 3 minus 1? 2 cube और 3 बड़ा टर्म है प्लस, सो प्लस ही आया अपॉन 2 इन, ओके ये सिंप्लीफिकेशन हुआ इनटू p प्लस माइनस 3 क्यू स्क्वायर अपॉन 2। ये फर्स्ट रूम है, ये सेकंड रूम है और ये थर्ड रूम है। फर्स्ट और सेकंड रूम ये प्लस वाली दीवार से सेपरेट हुआ है। सेकंड और थर्ड रूम या टर्म का रूम नहीं, टर्म माइनस वाली दीवार से सेपरेट हुआ है, तो ये सेकंड रूम में कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है। 2 और 2 cancel, that's it. So this is p square p into q plus alphabetical order में q into p लिखो या p into q because multiplication is commutative minus 3q square upon 4. So that's the expansion. And the last one, 21st question. All right, that is a square by 3 plus b square by 6 whole cube. चलिए चिल्ड्रन, आपको आइडेंटिटी तो याद करनी होगी। क्या है? बाइनोमियल, और एक ही बाइनोमियल है, उसका क्यूब। अभी उसका क्यूब के लिए यस होल क्यूब। कौन सा एक्सपांशन आइडेंटिटी यूज करेंगे? x plus y या x minus y plus y. Now what is the original identity? x cube plus y cube plus 3 times xy into x plus y. स्क्रीन पे है कि नहीं? ओ स्क्रीन में नहीं आ रहा है। I'll write here. यहां पे मैं आइडेंटिटी लिख दूं। x plus y whole cube is x cube plus y cube plus 3xy into x plus y. ये है आइडेंटिटी, करेक्ट? बहुत ऊपर चला गया, राइट? सो ये आइडेंटिटी यहां लगेगी, क्यूब ऑफ बाइनोमियल। चलिए हम इस तरह लिखते हैं, फर्स्ट टर्म क्यूब प्लस सेकंड टर्म क्यूब प्लस 3 टाइम्स फर्स्ट टर्म इनटू सेकंड टर्म इनटू फर्स्ट टर्म a square by 3 plus b square by 6। फर्स्ट टर्म सिंपल है, ये मैच हो रहा है, बराबर मैच हो रहा है, तो सेम साइन के साथ लेना है, जो भी है साइन को लेना ही नहीं है। a square by 3 b square by 6, a square by 3 b square by 6 and a square by 3 plus b square by 6। चलिए, now this is cube of a square, power of power, multiply करो 2 और 3, 2 3s are 6, cube of 3 27 plus once again power of power, b raised to 2 3s are 6 and cube of 6 into 6 into 6 216। well यहां ये तीसरा रूम है, ये ब्रैकेट है, इसलिए प्रोडक्ट में ही गिना जाता है। मोनोमियल इंटू मोनोमियल इंटू मोनोमियल इंटू बाइनोमियल, चारों प्रोडक्ट हुए, सो एक ही टर्म एक ही रूम में गिने जाते हैं। चलिए कुछ कैंसिल होता है तो कर लीजिए। सो नाउ यू गॉट प्लस साइन, a square b square upon 6 into binomial, that is a square by 3 plus b square by 6। So your first term is simple, second term is simple, but the third term is monomial into binomial। So मतलब उसको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, further simplification is possible। चलिए, this is a raised to 6 upon 27 plus b raised to 6 upon 216। now सीधा कर ले चिल्ड्रन, मोनोमियल इनटू बाइनोमियल तो सीधा करते हैं। a square into a square, 2 times a and again 2 times a, so a will be multiplied with itself 4 times, so you can write a raised to 4, b square, so b square upon 6 3s are 18
ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, so product will be positive. Now this monomial into second term, a square only twice, b square into b square, b raised to 4, नीचे 6 into 6 36, और ये भी पॉजिटिव, same sign, so product is positive. Now this is the expansion. So here we conclude the expansion, the queries that you had, right? I think we spent more than 15 minutes in that. Never mind. Well, whatever doubts are there have to be cleared. Okay? So you solve this again today. Alright? Fine. Now we are going to do factorization. Children, expansion and factorization are opposite process of each other. जो expansion करते हैं उससे उल्टी process, reverse process is factorization. चलिए हम समझते हैं नंबर से, पोलिनोमियल से नंबर का एग्जाम्पल लेके हम समझते हैं. Excuse me, I'll just have water, okay? Thank you. Okay. So now, factorization. Factorization प्रोसेस को समझने के लिए पहले हमको समझना होगा व्हाट इज अ फैक्टर. फैक्टर क्या है? व्हाट इज फैक्टर? किसे फैक्टर कहते हैं? तो उसको समझने के लिए लेट्स टेक टू डिविजन्स. 10 divided by 3, 10 divided by 5, 10 divided by 7, 10 divided by 10. Let's see these four divisions quickly. 3 3s are 9, 10 minus 9 is 1, simple. 5 2s are 10, 10 minus 10 is 0. 7 ones are 7. 10 minus 7 is 3. 10 ones are 10. And 10 minus 10 is 0. चलो देखिए ये 4 divisions में are you getting remainder 0 in any of these divisions? कौन से? This is first division, second division, third division and fourth division. ये 4 डिवीजन में कौन से डिवीजन में 0 आ रहा है? Now this chat that is going on is between you. Then what attention you all are paying here? Ritika, you are very much engaged in chatting with others. Who is Ritika Patel? बहुत चैट हो रहा है. मिस्टर गेमिंग, आपका ओरिजिनल नेम के साथ कल से इंट्रोड्यूस होना प्लीज. आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ चैटिंग में बिजी है? इफ यू डोंट वांट टू स्टडी यू कैन क्विट, यू कैन लीव द क्लास, देयर इज नो प्रॉब्लम.
आपको यहां ध्यान देना है, कौन क्या चैट कर रहा है वो ध्यान देना है। Ritika, even during the previous period, SS period, I was watching your comments. Be very careful. I'm going to call you today, wait. And from tomorrow, आपका जो ओरिजिनल नेम है वो ओरिजिनल नेम के साथ इंट्रोड्यूस होना है यहां, प्लीज। ये गेमिंग और क्या क्या नाम है, मिस्टर गेमिंग, ये मिस्टर गेमिंग कौन है भाई? बी केयरफुल। फ्रॉम टुमारो इफ यू आर अटेंडिंग द क्लास, आपका ओरिजिनल नेम, डोंट पुट एनी नेम एंड ज्वाइन दिस क्लास। चलिए फाइन, बहुत सारे बच्चों ने आंसर दे दिया कि सेकंड और फोर्थ में रिमाइंडर 0 है, सही है, यू आर राइट। चिल्ड्रन, you have learned ये जो 5 है it is called divisor, ये जो 10 है it is called divider, this answer that you got is called quotient and this 0 is remainder, correct? So what actually are you doing here? You are dividing a divider by a divisor, and when you get remainder 0, this divisor is called factor of dividend. ये divisor को dividend का factor कहा जाता है। जो मैथमेटिशियंस जब वो वर्क कर रहे थे, ये डिवीजन कर रहे थे, तो उन्होंने भी पाया कि कुछ डिविजन्स में रिमाइंडर 0 आ रहा है, सो दैट इज अ स्पेशल केस। उस केस में ये जो डिवाइजर है, उसको कुछ नाम दिया जाए, आम का नाम नहीं। हाँ, 5 is टोटापुरी ऑफ 10, 10 is टोटापुरी ऑफ 10, ऐसा कोई तो नाम देना है ना उसको। स्पेशल केस है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो वो मैथमेटिशियन सोच रहा है कि यहाँ ये डिवाइजर को कोई एक पर्टिकुलर नाम देना है, और उन्होंने क्या नाम दिया? फैक्टर। This 5 is called factor of 10. This 10 is called factor of 10. Why? Because 5 divides 10 exactly. 10 divides 10 exactly. So when a number divides a given number exactly, that number is called factor of that given number. In this case, 7 does not divide 10 exactly. So 7 is not a factor of 10. First case, 3 does not divide 10 exactly, so 3 is not a factor. So I hope you understood what is a factor. Yes, ये कुछ भी नाम मिल सकता था। 5 को जैसे मैंने बोला, 5 is called टोटापुरी of 10, this 10 is called टोटापुरी। जिसको जो मैथमेटिशियन ने जो नाम दिया उसके पीछे लॉजिक है। YouTube पे सर्च करो, there are many interesting stories कि ये फैक्टर, हाउ डिड इट अर्न द नेम फैक्टर। फैक्टर, इसको फैक्टर वर्ड क्यों कहा गया? क्या वो मैथमेटिशियन का दीदी का नाम था? क्या वो उसका प्लेस का नाम था? क्या उसका बच्चे का नाम था? क्या वो एक कम्युनिटी का नाम था? यू विल गेट मेनी स्टोरीज चिल्ड्रन, ओके? तो हम इसको टोटापुरी नहीं कहेंगे, उसको कहेंगे फैक्टर। इज दैट क्लियर? सो अंडरस्टूड व्हाट इज फैक्टर? नाउ हाउ विल यू फाइंड फैक्टर? आप फैक्टर ढूंढते कैसे हो? चलिए हाउ टू फाइंड फैक्टर वो देखते हैं फर्स्ट। 6, आई वांट टू फाइंड ऑल द फैक्टर्स ऑफ 6। 6 है तो मुझे 6 डिवीजन करना पड़ेगा। 1 2 3 4, ये थोड़ा दूर ले लूं, व्हाइट स्पॉट पे आ रहा है। I've taken dividend 6, so I'll need to do 6 divisions. Can you tell me what will be the first divisor? Of course, 1, then 2, 3, 4, 5, and 6. That will be the last divisor or division. Then next would be 7. वो तो डेसिमल में क्वोशंट आएगा, हमें क्वोशंट और रिमाइंडर भी इंटीग्रल फॉर्म में ही चाहिए, ओके? 1 6
are 6, 0. 2 3s are 6, 0. 3 2s are 6, 0. 4 1s are 4, 2. 5 1s are 5, remainder is 1. 6 1s are 6, 0. खेल खत्म. You got the factors of 6. कहां रिमाइंडर 0 है? फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस और लास्ट केस. 4 केसेस में रिमाइंडर 0 आया. दैट मींस 4 फैक्टर्स. नाउ फैक्टर्स ऑफ 6. रिमाइंडर 0, सो ये फैक्टर है. रिमाइंडर 0, सो ये डिवाइजर फैक्टर है. रिमाइंडर 0, सो ये डिवाइजर फैक्टर है. रिमाइंडर 0, सो ये 6 फैक्टर है. So you got the factors of 6. You got the factors of 6. Children, आप बोलेंगे कि मुझे 100 का फैक्टर निकालना है, तो कैसे निकालेंगे? 100 डिविजन्स करना है? नहीं, यहां भी 6 डिविजन्स नहीं करना है. मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं. देखो, जस्ट ऑब्जर्व करो. 1 डिवाइड बाय 6, 6 डिवाइड बाय 1 0 है, और वही 6 डिवाइड बाय 6, ये जो क्वोशंट है वो डिवाइजर बना दो. लास्ट केस में देखो तो 6 1 वो भी रिमाइंडर 0 है. देखो 6 डिवाइड बाय 2 रिमाइंडर 0. क्वोशंट क्या आया? 3. अभी ये क्वोशंट को डिवाइजर बना दो तो भी रिमाइंडर 0 है. सो व्हेनेवर रिमाइंडर इज 0, नॉट ओनली डिवाइजर बट क्वोशंट both are factor of 6. If 6 divides 1 exactly and quotient is 6, then 6 will divide 6 also exactly. If 6 is divided by 2 exactly और उसका टाइम क्वोशंट 3 आया, तो 6 will be also exactly divisible by 3. अब देखो, ये सारे डिविजन्स नहीं करना है, मैं दिखाता हूं. फर्स्ट डिवीजन हो गया. क्वोशंट क्या मिला? आई एम राइटिंग हियर. व्हाट इज द क्वोशंट? 6. चेक करो, इज इट बिगर देन डिवाइजर? क्या 6 1 से बड़ा है? तो आंसर यस. यस आया तो हमारा बैग में नेक्स्ट डिवीजन करना पड़ेगा. तो हम 1 के बाद 2 से डिवीजन कर लिया. चलो डिवाइड कर लिया, रिमाइंडर आ गया. 0 हो कुछ भी हो, अब आगे डिवीजन करना है क्या? तो देखो डिवाइजर क्वोशंट क्या है? 3. इज इट बिगर देन डिवाइजर? यस. क्वोशंट इज बिगर देन डिवाइजर. तो बैड लक, हमें नेक्स्ट डिवीजन करना होगा. नाउ डिवाइड बाय 3. कर लिया डिवीजन. अब देखो क्वोशंट, यहां क्वोशंट को देखो 2, वो छोटा है डिवाइजर से. क्वोशंट इज स्मॉलर देन डिवाइजर. बस स्टॉप. आपको आगे डिवीजन करना ही नहीं है. अब 6 डिवीजन नहीं, आपका काम 3 डिवीजन में निपट गया. योर वर्क इज डन थ्रू 3 डिविजन्स. अब पता कैसे चलेगा? अरे ये तीनों में ये इसको क्रॉस कर दो. ओके, सी नाउ आई एम राइटिंग दिस. 1 and 6 दोनों फैक्टर है. 2 और 3 दोनों फैक्टर है. 3 और 2 वो तो रिपीट हुआ. या I'll write pairs of factors after that. Pairs of factors. Once I complete my division work, I'll write pairs of factors, not factors, pair of factors. भाई 1 भी फैक्टर है और 6 भी फैक्टर है, उसको 1 into 6 लिखो. That is called pair of factor. 2 भी फैक्टर है और 3 भी फैक्टर है. 2 into 3 और ये 3 into 2 क्रॉस हो गया, उसको नहीं लिखना है because it's 1 and the same. 2 into 3 and 3 into 2 are equivalent, तो वापस नहीं लिखना है. देखो how many pairs you got? 2. और अब ये नंबर 1 2 3 6 1 2 3 6 pairs of factors से लिख दो. Alright? Okay? Is it okay? So you got the factor. अभी एक आखिरी वाला हम कर लेते हैं. और तुम्हारा ये तो सिर्फ फैक्टराइजेशन की बात है. कैसे फैक्टर ढूंढते हैं, उसका फैक्टर ढूंढने का बहुत सारे तरीके हैं. हम 1 by 1 देखेंगे. आज हम बेसिक ही देख रहे हैं. चलिए, आई एम गोइंग टू फाइंड फैक्टर ऑफ 75. फैक्टर ऑफ 75 मुझे ढूंढना है. फैक्टर ऑफ 75. चलिए 75 डिवाइड बाय 1, 75 डिवाइड बाय 2. अब जरूरत पड़ी तो आगे डिवाइड करेंगे. 1 by 1 डिवाइड करेंगे. 1 is a factor of all number. 1 75 are 75 and remainder 0 I by. 2
2 3s are 6, 1 5, 2 7s are 14. I'm going a bit quickly. Time is running out. चलिए वो चेक करो. डिवाइजर 37 है और सॉरी क्वोशिएंट 37 है, वो डिवाइजर से बड़ा है तो आपको नेक्स्ट डिवीजन करना पड़ेगा. 75 डिवाइड बाय 3, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5. डिवाइजर 1 by 1 इंक्रीज करते जाओ. चलिए through 3 2s are 6, 1 15, 3 5s are 15 and remainder is 0. चेक करो. क्वोशिएंट 25 ग्रेटर देन 3. बैड लक. नेक्स्ट डिवीजन करना पड़ेगा. 75 डिवाइड बाय 4, 4 1s are 4, 3 5, 4 9s are 4 8s are 32 and 3 is the remainder. चलिए क्वेश्चन को चेक करो. 18 ग्रेटर देन 4, ग्रेटर आया तो बैड लक. नेक्स्ट डिवीजन करना पड़ेगा. 75 डिवाइड बाय 5, 5 1s are 5, 2 5, 5 5s are 25 और 0. डिवीजन तो हो गया, पर नेक्स्ट डिवीजन करना है. 15 क्वोशिएंट इज ग्रेटर देन डिवाइजर. बैड लक. यस करना पड़ेगा. 75 डिवाइड बाय 6, 6 1s are 6, 1 5, 6 2s are 12 and remainder is 3. क्वोशिएंट 12 ग्रेटर देन 6. बैड लक. नेक्स्ट डिवीजन करना पड़ेगा. 75 डिवाइड बाय 7, 7 10s are 70 and the remainder is 5. Division is over. Yes. Now 10 is greater than 7. All right. I'm getting signal to conclude my lecture. Okay. The other teacher has his lecture. Now 75 and greater. So divide by 8. 8 9s are 72. 3 remains. Now 9 is greater than 8. Bad luck. मेरे आपके लिए भी और मेरे लिए भी, क्योंकि डिवीजन करना है, और जो वेटिंग में है उनके लिए भी, क्योंकि और नंबर जा रहा है. 75 डिवाइड बाय 9, 9 8s are 17 और अब गुड लक आया. द क्वोशिएंट इज स्मॉलर देन द डिवाइजर. हम आगे अब डिवीजन करेंगे नहीं. वैसे तो 75 है तो 75 डिवीजन करना होता ना, लेकिन सिर्फ 9 डिवीजन में निपट गया. राइट. अब फैक्टर कौन से है? जहां रिमाइंडर 0 आए वही फैक्टर, बाकी का फैक्टर नहीं है. सो फैक्टर्स ऑफ 75 मैंने कहा पहले पेयर्स ऑफ फैक्टर्स लिखेंगे. कहां लिखे? ये फर्स्ट वन 1 into 75, 1 into 75 ये पहला पेयर ऑफ फैक्टर. दूसरा 3 into 25 ये दूसरा. तीसरा 5 into 15 हो गया. So which are the factors? 1 3 5 15 25 75. 1 3 5 15 25 and 75. These are the factors of 75. मिल गया. लेकिन ये बेसिक फंडामेंटल समझने वाली मेथड है. ऐसे ये भी नहीं करते, उससे भी आसान तरीका है ये फैक्टर्स निकालने का. कल देखेंगे. ऑलराइट. So wait till tomorrow. Till then, goodbye. अब हम पॉलिनोमियल के फैक्टराइजेशन पे तो आए ही नहीं, सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं. All right, children. So see you then tomorrow. Till then, goodbye.